This is Red FM and you are listening to a rebroadcasted program. Please check the full schedule on our website, redfm.ca. Chalant Mamle. Current affairs. Red FM सुन रहे सी 93.1 है। इस ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਤੇ 9:08 ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਸ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਦਈ ਕੋਲਿਨ ਗੰਜ਼ਾਲਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਲਿਨ ਗੰਜ਼ਾਲਸ ਨੇ ਇੱਕ WHO ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਆਟਵਾ ਚ ਹੋਏ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਵਿਨਿੰਗ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨੂਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਬਈ ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਅਕਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਨਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, 8 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਹੁਣ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 6:30 ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੋਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੋਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ 84 ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਤਾ ਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। Colin, welcome. Thank you. So what is your thesis about this? ਵੀ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੈਟ शक्तियां काम कर रही हैं? इसके पीछे ये है कि जब सरकार सपोर्ट करती है मैसेकर को, जब सपोर्ट सरकार का पूरा
फोर्स है जेनोसाइड के पीछे, जब सरकार के पार्टियां के लोग जेनोसाइड करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फंक्शन करना नामुमकिन होता है। अगर होम मिनिस्टर कहता है कि आप टच मत करो लोगों को, प्राइम मिनिस्टर अगर कहेगा कि इसके बारे में कुछ मत करो, तो फिर पुलिस को काम करना बहुत मुश्किल होता है। और हजार लोग कत्ल होने के बाद भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाना और लोगों को गिरफ्तार करना और पुट देम बिहाइंड बार्स, ये बहुत ही मुश्किल होता है। हमने देखा 84 राइट्स में, 84 मैसेकर जेनोसाइड में देखा था, उसके बाद 1992 बॉम्बे जेनोसाइड में देखा, उसके बाद 2007 कंडमल में जब 200 क्रिश्चियन को, ईसाई लोगों को मार डाला, और 2002 गुजरात में जहां पे 3,000 मुसलमान को जान से मारा। तो ये इम्प्यूनिटी है कि जाओ कत्ल करो, मारो, जलाओ लोगों को, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा होम मिनिस्टर हमारा पार्टी का है और प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी का, चीफ मिनिस्टर हमारा पार्टी का है। ये इम्प्यूनिटी का कल्चर जैसा हो गया। देखो जी, गुड गवर्नेंस आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲਾ देंगे। जी, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। नामुमकिन है लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना। चिदम्बरम साहब ने खुद घोषणा की 1 साल पहले कि 650 डिस्ट्रिक्ट में से 220 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें आर्म स्ट्रगल के ग्रुप्स है, नक्सलाइट हो या कुछ और ग्रुप्स हो। लेकिन पूरा हमारे देश में अंगार जैसी स्थिति हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो गया। और ये जनता की तरफ से नहीं हुआ। पब्लिक इज वेरी लॉ अबाइडिंग, पब्लिक कानून में मानता है, पब्लिक कानून के हिसाब से चलता है, कानून के रास्ता से चलता। लेकिन ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया सरकार की तरफ से। इन स्टेट आफ्टर स्टेट यू विल सी, झारखंड इट इज ब्रोकन, छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया, वेस्ट बंगाल में खत्म हो गया था। तो ये सिचुएशन हो गया। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी ओनली इन नेम, ऊपर दिखाने के लिए डेमोक्रेसी जैसा है, लेकिन भीतर से अगर देखोगे तो पूरा करप्शन फैला हुआ है। And law and order, there is no such thing like law and order in India today. Colin Gonzalez, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ महसूस ਕੀਤਾ हिंदुस्तान ਦੇ ने? एक्चुअली 84 में जब जेनोसाइड हुआ था तो शायद ये स्थिति थी कि बाहर के लोग जितना अटेंशन देना चाहिए था, जितना ध्यान देना चाहिए था, वो शायद नहीं हुआ। लेकिन अब इतना मैसेकर होने के बाद 92 बॉम्बे में वगैरह और 2002 गुजरात, 2007 उड़ीसा में, अब हमारे देश में कुछ अवेयरनेस जैसा हो गया कि ये जो मसला है ये इंडिविजुअल कम्युनिटी हल नहीं कर सकता। पूरा देश में एकता होना जरूरी है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का और सोशल मूवमेंट का एकता होना बहुत जरूरी है। इट कैनॉट बी फॉट बाय वन कम्युनिटी ऑल्सो। सो ऑल ऑप्रेस्ड पीपल, वेदर दे आर सिख्स और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, दलित्स, आदिवासीज, पुअर पीपल, मजदूर वर्ग जो है, खेतीहर मजदूर, हम सब साथ में आना चाहिए था, एकता होना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू ब्रिंग अ न्यू नेशनल मूवमेंट टू आवर कंट्री। हमारे देश की जो स्थिति है, द प्रेजेंट लीडरशिप, प्रेजेंट गवर्नमेंट ब्रिटिश से भी और खराब है, ब्रिटिश से भी और भ्रष्ट है, ब्रिटिश से भी और वायलेंट हो गया। तो नया नेशनल मूवमेंट जैसा होना जरूरी है। अब आप उम्मीद रखते हैं कि अन्ना हजारे या रामदेव ऐसी मूवमेंट शुरू कर चुके हैं, ये किसी तरफ में ले जाएगी, कोई इंसाफ मिलेगा? रामदेव के बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि रामदेव के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अन्ना हजारे के बारे में मैं कुछ जानता हूँ। अन्ना हजारे एक ईमानदार और प्रगतिशील आदमी है, और अन्ना हजारे जैसे हमारे देश में करीब हजार लोग हैं जो दलित के लीडर है, आदिवासी के लीडर है, खेतीहर मजदूर के लीडर है, माइनॉरिटीज के लीडर है।
तो वैसे हमारे देश में बहुत लोग हैं जो नया जमाना जैसा ला सकता है। ये लोग अगर एक मंच पर अगर आएगा, और आना मुश्किल भी है मैं जानता हूं, लेकिन अगर एक मंच पर आएगा तो इंडिया में एक क्रांति की स्थिति जैसी होगा और पूरा परिवर्तन होगा, संपूर्ण क्रांति जैसा होगा और नया जमाना आएगा इंडिया में। तुसी भारतीय नागरिक हो जी? आप भारतीय नागरिक हैं? जी, मैं इंडियन सिटीजन हूँ जी, भारतीय नागरिक हूँ। जैसी बातें आप कर रहे हैं, अगर आप भारत वापस जाएंगे आपको हिंदुस्तान की सरकार मरवा तो नहीं? ये बातें मैं खुलेआम से बोलता हूँ इंडिया में, और जो हमारे कानूनी अधिकार है, हमारा अधिकार है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इंडिया में। तो ये जो बात मैंने जो कही या तो मैं इंडिया में बार बार कहता, आई डोंट ब्रेक द लॉ बट दिस इज माई राइट टू स्पीक आउट फॉर रेवोल्यूशन एंड न्यू इंडिया। This is Red FM and you are listening to a rebroadcasted program. Please check the full schedule on our website redfm.ca. आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है जी, दूसरी तरफ आप जैसे व्यक्ति आप हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पे प्रचार कर रहे हैं और आपको कोई मार नहीं रहा, आपको कोई खतरा नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है? मेरा सिचुएशन थोड़ा अलग सा है क्योंकि मैं वकील हूँ और मैं वकालत करता हूँ, तो मेरा थोड़ा प्रिविलेज सिचुएशन है। लेकिन पंजाब में जाके अगर पुलिस वालों से अगर कोई आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल अगर करना चाहेंगे, देन दे विल गेट शॉट इन द हेड। इफ यू गो टू आंध्र प्रदेश एंड स्पीक टू पुलिसमैन, दे विल शूट यू। इफ यू गो टू मणिपुर और कानूनी अधिकार के बारे में अगर कहेंगे लोगों से, दे विल शूट यू इन द हेड। तो गन कल्चर है हमारे देश में। कुछ लोग इससे थोड़ा प्रिविलेज पोजीशन में है तो बातें कर सकते हैं। कॉलन जी, एक गल होर दसो भी, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ? बाकी हिंदुस्तान के लोग कमें महसूस करते हैं? हाँ, ये बात सही है, लेकिन पंजाब की भी जो स्थिति है, 84 मैसेकर होने के बाद और 1990s में जो किलिंग्स हुआ पंजाब में, आज तक न्याय नहीं हुआ। किसी को पकड़ा नहीं, कुछ चंद लोगों को पकड़ के जेल में है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट्स है वो बाहर है अभी तक पंजाब का। जो 1992 बॉम्बे राइट्स का है, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। 3000 मुसलमान को कत्ल किया और एक भी कन्विक्शन नहीं। अजीब बात है। तो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज जो है वो महसूस करता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ और वो लोग फील करते हैं कि कुछ होना चाहिए, लेकिन आगे का रास्ता ही नहीं है। कोई भी पार्टी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी अगर हो, वो सजा देने के लिए तैयार नहीं है। वो क्रिमिनल जैसे कंस्पिरेसी है पॉलिटिकल पार्टी उसका और ये गुंडों लोगों का। क्रिमिनल लोग एंड पॉलिटिक्स, दे आर ऑल टुगेदर इन वन बिग कंस्पिरेसी। नोबडी इज विलिंग टू प्रोसिक्यूट। यू नो, तकरीबन सारी जिंदगी होगी मैनू सुनदियां नूं कि अज इनकलाब आया, अज क्रांति आई। हरकृष्ण सरजीत तो लैके तुहाडे तक हुण भी तुसीं क्रांति की गल कर रहे हो। कदों आएगी ये क्रांति? कित्थों आनी क्रांति है? देखिए, हमारे इंडिया के लोगों का विशेषता है कि वो बहुत सहन कर सकता है। वो साउथ अमेरिका जैसा नहीं, साउथ अमेरिका लेके लोग नाराज हो जाते हैं तो इमीडिएटली वो